starting with the fact कि most of the people present here would naturally be beginners जिनका शायद Yes. पहला अटेम्प्ट है या जो सोच रहे हैं यूपीएससी के बारे में. First of all, what I would like to clear out is that this exam is very much possible to be cracked and dominated in 1 year's time. I think that 1 year is more than enough time to completely crack this exam with highest ranks. Uh, सो स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, तो मेरे 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं. जो फर्स्ट अटेम्प्ट जो मेरा था उसमें आई हैड मिस द प्रीलिम्स कट ऑफ बाय 2 मार्क्स. तो इन दैट सेंस, क्योंकि मेरी पढ़ाई भी बहुत कम थी बिकॉज आई वाज प्रिपेयरिंग विद अ जॉब, तो आई नो कि 4-5 घंटे की भी डेली क्वालिटी प्रिपरेशन से आई मिस द कट ऑफ बाय 2 मार्क्स. वो भी बिकॉज मैंने बहुत कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, कुछ 60 के अराउंड क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट किए थे मैंने. तो द नेक्स्ट अटेम्प्ट विच आई हैड, एक पूरा साल मैंने ऑलमोस्ट एज इफ आई वाज स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच. आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फ्रॉम जून टिल द प्रीलिम्स एग्जाम. मैंने फुल टाइम एस्पिरेंट की तरह प्रिपरेशन किया है, एंड इन दैट अटेम्प्ट इटसेल्फ आई क्लियर्ड विद 153 रैंक. In that attempt also, it was quite possible to get top ranks, but unluckily मेरा essay का पेपर जो था उसमें I had scored really really low marks. 76 marks के आसपास थे मेरे, which is much much less than average. So something went drastically wrong there. But in this attempt, thankfully, I was able to do everything decently well. Interview से लेके prelims से लेके सब कुछ. तो I have ended up with rank 3. तो that is And UPSC has released the everyone. calendar also. The exam now next year is on 24th of May. So they approximately have exact 1 year with them. So what would you like to say? So I think for people giving the next attempt, जो होगा in on 24th May of next year, right now is the time to get into this preparation full-fledged. Right. Like leave no stone unturned. I mean, आपको क्लासेस अगर लगानी है तो आप क्लास लगा लीजिए. आपको जो करना है आप कर लीजिए. Like get your basics right, do the hard work, do the answer writing, do whatever is necessary right now. Because 1 year is essentially the time where you will be completely focused on the preparation, your energy levels will be high, and you will be able to maintain that momentum. With 3 attempts in hand, I know कि मैं fourth attempt दे ही नहीं पाता. Like I would be mentally so burnt out. So that is one of the things that you will experience with repeated attempts. And I think first attempt is the best attempt. You are the most organic person. You are the most motivated person in that attempt. So people with 1 year in hand right now, I think it is the best time to start. And I think you should go into this preparation full-fledged without any pressure, without any burden. So that will definitely will give a very good attempt. Let's say मैं कल से start करना चाहता हूँ. Like if I had to start tomorrow, first thing I would do is get up tomorrow morning, get the Indian Express newspaper and read it in as much time as it takes me. जितना भी टाइम लगेगा मैं पढ़ लूंगा. मुझे पता है कि मुझे 2-2.5 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा. वो अखबार में पहले तो पढ़ूंगा. क्यों? क्योंकि मुझे पहले तो आदत डालनी है अखबार पढ़ने की. बाकी तो आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स ऑन द फर्स्ट डेट. आई जस्ट वांट टू गेट इन द हैबिट ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर. Yeah. Secondly, I'll sit down and first of all I will get my essential sources ready. हर सब्जेक्ट का जो बुक है, हर जो, वही तो मैं कह रहा हूँ, लाइक मेंस का पीवाईक्यू क्या कह रहा हूँ, सिलेबस मैं पहले खोलूंगा. I will look at each and every topic. I'll open the prelim syllabus. I'll see what are the basic subjects. क्या पढ़ना है हमें. Then I will see some topper talks. जैसे अभी लोग शायद देख रहे होंगे, वैसे I would go and see some topper talks. What books are toppers using for these subjects? एक एक सब्जेक्ट का मैं एक सोर्स बुक निकालूंगा, अच्छे से लिख लूंगा. 2 बुक्स मैक्सिमम एक सोर्स के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए. I will go and now order these books. एंड देन आई विल स्टार्ट विद द बिगर सब्जेक्ट फर्स्ट. मैं कोई बड़ा सब्जेक्ट उठाता, जैसे पॉलिटी से मैंने स्टार्ट किया था जब मैंने किया था. लक्ष्मीकांत मैंने बैठ के खत्म की थी. फिर उसके बाद मैंने स्पेक्ट्रम स्टार्ट की थी. फिर स्पेक्ट्रम खत्म करने के बाद मैंने सोचा कि यार मुझे लक्ष्मीकांत तो याद ही नहीं आ रही है. फिर मैं आधा दिन लक्ष्मीकांत वापस रिवाइज करता था और आधा दिन एनसीईआरटी ज्योग्राफी मैंने स्टार्ट कर दी थी साइड बाय साइड. तो ऐसे कर करके यू विल हैव टू एंड योर सोर्स बुक्स. जो है अपनी जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसको कंप्लीट करना है. फिर जब मेरी मोर और लेस 80% स्टैंडर्ड बुक्स कंप्लीट हो चुकी थी, फिर मैंने मेंस का सिलेबस उठाया, एक एक वर्ड ढूंढा, गूगल किया, चैट जीपीटी निकाला, कुछ भी किया. उसके A4 शीट्स मैंने रेडी कर लिए. साइड बाय साइड आधा दिन में अपना ऑप्शनल पढ़ने लग गया था. तो इस तरीके से यू हैव टू बैलेंस थिंग्स. लाइक आप एक पढ़ के हो गया तो फिर दूसरा स्टार्ट करोगे, तब तक पहला वाला भूल जाओगे. तो यू हैव टू इनकॉर्पोरेट उसका रिवीजन. एक बीच में ही किसी हफ्ते आपने उसका रिवीजन ही कर लिया.
अच्छा थोड़ा वो याद आ गया, अब फिर नया कुछ स्टार्ट कर दिया, फिर और 2 महीने के बाद वो पहले वाले सेकंड जो पढ़ा था वो भूल गए, तो उसको वापस घुमा दो एक बार। तो इस तरीके से यू हैव टू कीप बैलेंसिंग एंड परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन लगता रहेगा, एंड यू विल नो हाउ टू डू दैट बेस्ड ऑन व्हाट यू फील। अगर मुझे आज लग रहा है कि मुझे यार पॉलिटी नहीं याद आ रहा अच्छे से, तो मैं वापस जाके फिर लक्ष्मीकांत उठा के रिवाइज करूंगा उसे। तो इस तरीके से पहले तो जो कल स्टार्ट करना चाहता है न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो, बुक्स रेडी कर लो सब कुछ अपना। और तीसरी चीज तो बैठ के मैं सबसे पहले टाइम टेबल बनाता कि Okay. बाय नेक्स्ट मंथ आई वांट टू फिनिश लक्ष्मीकांत। आफ्टर दैट मैं चाहता हूँ कि बाय 15-20 डेज में स्पेक्ट्रम का मुझे आधा खत्म करना है। ये एक तरीके से मंथली प्लान चलाता मैं। फिर मुझे अक्टूबर से टेस्ट स्टार्ट करना है, तो मैं टेस्ट सीरीज बाय टेस्ट सीरीज ऑन October 1st ऐसे रिमाइंडर लगा देता। Hmm. apart from this, every day that I sit for study, I will have some daily targets also, कि अब मैंने इस पहले महीने में if I suppose I choose to do Lakshmikant, then today I want to do this chapter of Lakshmikant. This you will do on a daily basis, रात को सोने से पहले कल क्या करना है, that this you will think. तो इस तरीके से पहले कुछ दिन तो मैं अपना वर्क एथिक बनाता, and then slowly gradually I would get into the serious preparation of answer writing, test writing, etc etc. So that will happen organically once you firstly just start. You will find everything along the way. Everybody will support you, you will find your sources, you will find your help. Just begin the preparation. So basically what I would like to suggest is that the way to go about this preparation is to have a very good detailed timeline. So I always suggest this, and I did this myself. I think it's a great strategy is to be sure that you are going to be ready with your mains much before you give your prelims exam. Like I've said this many times also, but this is essentially the thing that you have to get right. तो अभी जैसे मेंस, जैसे मई का जो टाइम चल रहा है, नाउ यू स्टार्ट विद जून, तो जून से लेके जनवरी फर्स्ट वीक एंड तक अभी जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं, आई थिंक दे शुड कंप्लीटली गेट डन विद देयर मेन सिलेबस। अब मेन सिलेबस में क्या क्या चीजें आएंगी? मेन सिलेबस में आएगा पहले तो अपना मेंस का जो सिलेबस दिया हुआ है यूपीएससी ने, उसमें एक एक की पॉइंट पे कीवर्ड पे फोकस करके उसको डिटेल्ड सिलेबस जो है उसे समझना है। फर्स्टली उसके तो एक तो नोट्स रेडी होने चाहिए, ठीक है? एक एक जो पॉइंट दिया है ना सिलेबस उसका, यू शुड हैव वन A4 शीट वाला अप्रोच, यू शुड डू गेट दोज नोट्स रेडी। सेकेंडली, गेट योर ऑप्शनल डन। थर्डली, गेट कंफर्टेबल विद आंसर राइटिंग। डेली 1 घंटा 2 घंटा आंसर राइटिंग आपको करनी है, 47 मिनट्स मैं करता था, यू कैन डू वट एवर टाइम यू वॉन्ट, फ्री है। करंट अफेयर्स फॉलो करना है और टेस्ट लिखना है। ये सब में जब तक जैन एंड वीक आएगा, वी विल बी डन विद ऑल दिस आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस, टेस्ट राइटिंग प्रैक्टिसेस, आवर स्टैंडर्ड बुक्स विल बी डन, वी विल बी मोर और लेस aware of current affairs, etc etc. ठीक है? After that, when you keep your option and everything aside, and from Jan mid to whatever your prelims का एक दिन पहले तक टाइम है, you will be studying for your prelims preparation. You will be reading the same source materials. सब्जेक्ट तो वही है, बस एग्जाम का अप्रोच चेंज हो जाएगा। आपके बुक्स और वो सब्जेक्ट मटेरियल तो एक ही रहेगा। हिस्ट्री डजंट चेंज फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस। हिस्ट्री रिमेन्स द सेम, द वे यू स्टडी इट चेंजेस। तो यू विल स्टडी दैट कंटेंट मटेरियल एसेंशियली ओवर एंड ओवर अगेन। आपकी रिवीजन बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको डेटा फैक्ट याद रहेगा, आप प्रीलिम्स के लिए बहुत सारे मॉक टेस्ट दोगे, आप उसकी आंसर कीज रिवाइज करोगे, तो यू विल बी वेरी वेल कंफर्टेबल विद द प्रीलिम्स का सिलेबस मटेरियल। तो व्हेन यू क्रैक प्रीलिम्स, व्हिच यू विल डेफिनेटली क्लियर if you are prepared well, तो जो टाइम बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस दैट यू विल गेट ना, which is starting right now for people if they are writing mains, 80-85 days में ना, see you can't complete your optional, you cannot do that. आप कर सकते हो, मतलब definitely it's possible, but it's highly improbable. तो in that time, a good aspirant, a person who is on the razor edge of the preparation, will basically revise their material. जो आपने A4 शीट नोट्स बनाई थी जून से लेके जनवरी तक, वो मटेरियल और वो सारा माल आपके पास रेडी होगा। बस उसको बार बार पढ़ना है आपको, और जो टेस्ट आपने लिखे नहीं है वो आप लिखिए, और टेस्ट, और उसको और शार्प कीजिए। सो यू विल गो एंड गिव योर मेंस आल्सो व्हिच विल बी अमेजिंग। तो यू विल गिव गुड मेल्स आल्सो। आफ्टर दैट जस्ट वेट फॉर योर इंटरव्यू कॉल। मतलब आई जेन्युइनली फील कि कोई इंसान, अगर कोई एस्पिरेंट इसको ठीक से करता है, तो मतलब ज्यादा स्कोप नहीं बचता कि नहीं क्लियर करने का। तो मतलब आई थिंक दिस इज द वे टू डू इट, 1 year in hand. And I think if you have this kind of an approach, a good timeline, well planned, you will have less stress, क्योंकि सब कुछ हिसाब से चल रहा होगा टाइम के हिसाब से। प्रैक्टिस भी बहुत हुई होगी, और प्रैक्टिस करने से ही अपने को कॉन्फिडेंस भी आता है। तो सब कुछ मेरे हिसाब से सही से चलेगा।